Hi viewers, I'm Sheikh Fardan Ali once again with a new video with a new topic. Our today's topic is a very inspirational topic, and this topic is from the textbook of plus 2 second year science of Council of Higher Secondary Education Odisha board student, and the name of the topic is Stay Hungry, Stay Foolish, which is written by one of the great American businessman, one of the great American inspirational person, Steve Jobs. This particular topic, Stay Hungry, Stay Foolish, is a life event, or we can say that autobiographical element of Steve Jobs' life. In this video, we will get the information about Steve Jobs, who the Steve Jobs is or was, and what the great invention he has given to our society, why and how he became very famous, what he has done in his life, so that we can assume him as one of the greatest influential and inspirational person of the world. Okay, and before going to the chapter, I just would like to tell you that I think you all are aware about the Apple company, which is very famous for manufacturing and creating the modern gadgets like mobile phone, tablet, and iPod, Macintosh, like personal computer and desktop. Okay, these all are the invention of, these all are the creation of Apple International Corporation, and that person, Steve Jobs, is the founder or chairman, or you can say that chief executive officer of Apple International Corporation. Okay, why we consider Steve Jobs as one of the inspirational person? Because by his visionary, by his invention, by his design, he gave tremendous beneficiary to the world, to our society. Okay, we are living in a modern society. Okay, and present time, today's time, we can't imagine our life without technology, without computer, without modern gadgets like mobile phone, iPad, etc., etc. He was the founder, he was the pioneer, he was the inventor of such type of ideas, such type of gadgets. Okay, and this particular chapter is this story or this topic is a complete speech of Steve Jobs. Once he has addressed thousands students of Stanford University of America during the commemoration day of Stanford University, he has delivered a speech, and this particular chapter, Stay Hungry and Stay Foolish, is the complete speech of Steve Jobs. In this chapter, we come across, I have told you that we come across the autobiography, the live event of Steve Jobs. Okay, and here in this chapter he has narrated specially three things. One is his birth, regarding his birth. Second one is about his upbringing, and third one is about the education of his life. Okay, you will be amazed, you will be shocked by knowing that Steve Jobs, he was the college dropout in his career, in his life. He has never completed any proper college education. He has not got any proper certificate from
any college because he left his education, okay, without completing that. Apart from the college dropout, how he became great success, how he became very influential and inspirational person of the world, this is very peculiar because he has given the utmost and fullest dedication in his life, okay, in his work, so that he can become a great success in his life, okay. And let's come to the career, and I have told you all about the Steve Jobs. Let's come to some, we will focus on Steve Jobs, okay. He was an American fellow who was born in the year 1955, okay, and he was a great businessman, great designer and inventor also, okay. The world remember him as the co-founder of Apple International Corporation, as the chairman of Apple International Corporation, as the chief executive officer of Apple International Corporation, okay. And he is considered as the greatest visionary of our time, revolutionary also, and also inspirational character he has possessed, okay. And we can also called him the charismatic pioneer of personal computer revolution, okay. Personal computer जोटा आमे डेस्कटॉप बोली कहू, लैपटॉप बोली कहू, से तरह जो न्यू टेक्निक्स, न्यू कौन इन्वेंशन, न्यू तार कौन फॉर्मेट जोटा इम्प्लीमेंट करी बारे से होछंती पायोनियर, ओके. आमे जो आजिकली फॉन्ट लिखुछु, जोड़ा टाइप करूछु, जेते बेला आमे वर्ड रे टाइप करूछु, डिजाइन रो डिफरेंट डिजाइन रो जो वर्ड आमे क्रिएट करि पारुछु टाइपिंग माध्यम रे कंप्यूटर रे एंड डेस्कटॉप रे, एंड सेटा को मैकेंतोश रे तांकर जो कंप्यूटर एप्पल रो फर्स्ट कंप्यूटर मैकेंतोश थला से तरह से इंट्रोड्यूस करिथिले, ओके. एंड दिस चैप्टर इज I have told you the speech of commemoration day at Stanford University in the year 2005, okay. And that fellow Steve Jobs, he died in the year 2011, okay. And the chapter Stay Hungry, Stay Foolish is based on 3 themes, okay. We will get the 3 major themes of the chapter because here he first narrate his birth, and second theme is about his upbringing, how he completed his kindergarten, how he got up to his early age, to younger age, okay, brought up, and upbringing, regarding his upbringing, okay. And third theme is based on his education, okay, and how he end with his incomplete education of college life, okay. Whether his incomplete education of his life gives any benefit to him or not. Obviously his incomplete education has given him a par excellence, okay, and this reflects in his attitude, in his character, how he became the world famous personality, okay. And in this particular chapter, in this particular whole chapter, the writer Steve Jobs tries to, okay, give us a very clear cut idea about connecting dots, okay. He focuses his speech, he focuses his words on connecting dots, okay. So first of all, we have to know that what is dot. Here dot refers to the main event of a person's life, main event of, we can say, Steve Jobs' life, okay. He connect the event of his past life, his present life in a straight way, okay. He just want to tell us that our past is anyhow connected with our present, okay, and also our present is anyhow connected with our future, okay. If we consider our past a single dot, our present another dot, and future another dot, then if we connect all the 3 dots, it will be a straight line, okay. That means I can say that our present is the reflection of our past, and our future
will be the reflection of our present. Okay, this is the main motto of Steve Jobs in this chapter. Okay, this is all about the introductory part of the chapter, introduction about Steve Jobs. Now we will explore the text. As I have narrated many more things about Steve Jobs, and this is a very long chapter. Okay, this chapter is divided into 3 units, and each unit having a lengthy conversation. Okay, and for our better understanding, I just would like to divide a first unit in 2 parts and 2 different videos. Okay, for the better conveniency of you all the student. Okay, and let's explore with the chapter what is written in the topic, what is written in the chapter, and what is the autobiography, what the real event he has narrated in this chapter. Let's begin with. Now we will explore with the text of Stay Hungry, Stay Foolish. Unit 1, warm up. The article is Steve Jobs' commencement address at Stanford University in 2005. It is one of his most quoted speeches. It has been described as life-changing and career-transforming. In the course of his speech, he narrates 3 stories to give an account of his life. The first story is about his birth, upbringing, and education. Read the text below for the details. I have told you that and this particular unit, this particular topic is a speech of Steve Jobs at Stanford University in 2005, where he addressed near about thousands graduate students. Okay, and this particular topic, this particular chapter is considered as or this speech is considered as one of the greatest life changing and career transforming speech of Steve Jobs. Okay, and here in this chapter we will come across 3 main theme, 3 main points, that is his birth, upbringing, and education. Let's start with the text. The text: I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. I never graduated from college. Truth be told, this is the closest I have related stories ever gotten to a college graduation. Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. Okay, so I have told you that this chapter is a speech of Steve Jobs. Okay, and here when the chapter begins, that time as a person delivering, giving a speech or addressing the public, and such type of incident is at the beginning. I'm honored to be with you today. So here the writer says that writer consider himself fortunate that he was present in front of thousands of graduate. Okay, though why he was fortunate, and he said that he was fortunate only because he has not completed his graduation, even he has not completed his proper college education. That's why he consider himself as fortunate. Okay, and एठी राइटर कहबाकू जाउछंती कि ट्रुथ बी टोल्ड, दैट मीन्स से सत कथाटा ऑडियंस मानकू कहबाकू जाउछंती दिस इज द क्लोजेस्ट आई हैव रिलेटेड स्टोरीज एवर गॉट इनटू ए कॉलेज ग्रेजुएशन. ओके, तो तांको लाइफ रो जो ग्रेजुएशन केमिति से करि पार नथले, माने कॉलेज ग्रेजुएट केमिति से हेई पारि नथले, कॉलेज रु ड्रॉप आउट कर देथिले निजर एजुकेशन को, से विषय से ऑडियंस मानकू, दैट मीन्स ग्रेजुएट स्टूडेंट मानकू कहबाकू से जाउछंती. Okay, today I want to tell you 3 stories of my life. That means here he just want to confess his life, निजर लाइफ रो से सत्य घटनाटा को से
पिलामानक सामने रखा जाउछंती एंड से सत्य घटना को से तीनोटी ब्यूटीफुल स्टोरी माध्यम रे से वर्णना करिया जाउछंती जोटा कि आमे पूर्व वार्म अप रे मु तुमको कहितली कि जस्ट फर्स्ट स्टोरी रिलेटेड विथ हिज बर्थ सेकेंड वन इज हिज अपब्रिंगिंग लालन पालन होगी से केमिति बड़ होइथिले एंड थर्ड स्टोरी तांकर एजुकेशन विषय रे अछि तो एडी से तीनोटी स्टोरी माध्यम रे कंप्लीट स्पीच टाकू वाइंड अप करिया को से जाउछंती ओके द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स ओके तो एठी जो फर्स्ट स्टोरी रे से स्टार्ट करिवे तांकर बर्थ को नै की ओके तो इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन connecting the dots. What do you mean by dots? I have narrated just before that dot means the main incident of a person's life. Here Steve Jobs कर life रो जो main incident को से main कौन achievement हो कि तांकर problem हो कि जहाँ भी गोटे घटना हो ताकू से dots बोली एठी कौन करछंती present करिछंती. Okay, the first story is about connecting the dots. तो एबे देखिबा तांको लाइफ रो जो मेन फर्स्ट डॉट कोन थिला फर्स्ट इंसिडेंट हो कि एक्सीडेंट हो कि जहा हो सेटा कोन थिला ओके I dropped out of Reed College after the first 6 months but then stayed around as a drop in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out? तो कहले दैट मीन्स हे ताको लाइफ रो जेते स्टोरीटा स्टार्ट करूछंती ताको से रिलेट करूछंती पूर्व कहितले कॉलेज सहित एटा रिलेट अछि ओके तांकर बर्थ तांकर कॉलेज सहित रिलेट अछि केमिति अछि सेटा हम देखिबा आई ड्रॉप्ड आउट मीन्स पाठ अधारु छाडी दबा ओके आई ड्रॉप्ड आउट रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 मंथ ओके जेते बडे से कॉलेज रो एडमिशन नेले 2 इयर्स कोर्स रे जेते बडे से एडमिशन नेले फर्स्ट 6 मंथ कंप्लीट कला परे से तांकर एजुकेशन टाको ड्रॉप आउट कर देथिले पाठ पढ़ा टाको छाड़ी देथिले काहे की छाड़ी थिले व्हाई डिड आई ड्रॉप आउट काहे की से ड्रॉप आउट हेथिले काहे की से पाठ पढ़ा टाको अधारु छाड़ी देथिले से विषय रे प्रांजल भाव रे से नेक्स्ट पैसेज रे वर्णना करिवे एंड कोन कहले बट देन स्टेड अराउंड एज ए ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 मंथ्स और सो बिफोर आई रियली क्विट ओके तो कहले कि कॉलेज रे पाठ पढ़ा से 6 मंथ रे क्लास 2 कंप्लीटली क्लोज करी देइथिले क्लास को जाई नथिले ओके एंड किंतु ड्रॉप इन हिसाब रे दैट मींस कॉलेज रो कैंपस रे कॉलेज रो हॉस्टल रे से नेक्स्ट 18 मंथ्स दैट मींस 2 इयर्स रो जो कोर्स अछि दैट इज 24 मंथ रो कोर्स अछि तो से कोर्स को 6 मंथ रे से ओमिट कर देइथिले सत पाठ पढ़ा छाड़ी देइथिले क्लास आउ जाउ नथिले रेगुलर क्लास को जाउ नथिले किंतु से नेक्स्ट 18 मास काल से कॉलेज रो कैंपस भितरे हॉस्टल रे निज सांग साथी मानक पाखरे से रहिथिले सुविधा रे रहि नथिले ताको लाइफ रे बहुत असुविधा थिला सेटा को से फर्दर डिस्क्लोज करिया को जाउछंती ओके another 18 months or so before I really quit. Here really quit means कॉलेज टाको संपूर्ण भाव में छाड़ीबा पूर्वरु से पाठटा छाड़ी सारी थिले किंतु 18 मास काल सेमिति न पाठ पढ़ी कि कॉलेज रे रहिथिले काहे की रहिथिले को परिस्थिति रे से पाठ छाड़ी थिले जदि छाड़ी देथिले काहे की 18 मास रहिले से 18 मास रे दीर्घ 18 मास रे से कॉलेज रे कोन सिखिले सेटा को से फर्दर आगरे वर्णना करूछंती वर्तमान आम देखा तांकर कज कौन थिला कारण कौन थिला जो कारणवशत से जो चापरे आसिकी से कॉलेज रो पाठ पढ़ाटा को अधारे छाड़ी एंड कहीं से कॉलेज रे रही थे सेटा देखा वर्तमान इट स्टार्टेड बिफोर आई वाज बोर्न तो ये राइटर स्टीव जॉब्स कहवाक जाउछंती तांकर जो कॉलेज रो पाठ पढ़ाटा छाड़िले जो परिस्थिति आसिकी छाड़िले से परिस्थितिटा से जो कारणटा तांकर जन्म पूर्वरु स्टार्ट हो सारी दैट मीन्स किसी एमिति जिनस थिबो से बाध्य होइथिले से निज इच्छा रे आसी नाहांती बाध्य होइकी से कॉलेज को आसीछंती जोटा कि तांकर बर्थ पूर्वरु डिसीजनटा हो सारी दैट मीन्स तांकर पेरेंट्स माने किसी डिसाइड करिथिबे देखिबा सेटा इट स्टार्टेड बिफोर आई वाज बोर्न माय बायोलॉजिकल मदर वाज अ यंग अनवेड कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट and she decided to put me up for adoption okay तो एठी तांकर जो बायोलॉजिकल मदर दैट मीन्स जी तांकर जन्मदात्री माँ थिले से जने कॉलेज ग्रेजुएट स्टूडेंट थिले अनवेड थिले अविवाहित कॉलेज स्टूडेंट थिले दैट मीन्स
अदर वे रे आमे कहिबा गले ही वाज इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिज बायोलॉजिकल मदर ओके तो से तांको माँ जी जन्मदात्री माँ थिले से तांको एडाप्शन रे काहाकू से देवाई चाहूले कि तांको पुत्र को लालन पालन करू बोलू से देवाकू चाहूले ओके शी डिसाइडेड टू पुट मी अप फॉर एडाप्शन ओके शी फेल्ट वेरी स्ट्रांगली दैट आई शुड बी एडाप्टेड बाय कॉलेज ग्रेजुएट्स सो एवरीथिंग वाज ऑल सेट फॉर मी टू बी एडाप्टेड एट बर्थ बाय ए लॉयर एंड हिज वाइफ जेहेतु तांकर बायोलॉजिकल मदर जने कॉलेज ग्रेजुएट थिले ओके शी हैज़ द डिजायर दैट तार चाइल्ड को भी कहीं जने कॉलेज ग्रेजुएट हेथिबा कपल ताकू कौन पोष्य संतान भाव रे ग्रहण करंतु दैट मीन्स से जहाँ को पोष्य संतान भाव रे दवा पई चाहूथिले से कपल बोथ निश्चित भाव रे जने ग्रेजुएट हेथिबा दरकार एटा तांकर डिजायर थिला ओके एटा इच्छा तांकर थिला ओके से सब जिन विल तैयारी कर सारी एंड सब सेटलमेंट से कर सारी शी फेल्ट वेरी स्ट्रांगली दैट आई शुड बी अडाप्टेड बाय कॉलेज ग्रेजुएट सो एवरीथिंग वाज ऑल सेट फॉर मी टू बी अडाप्टेड एट बर्थ बाय ए लॉयर एंड हिज वाइफ तो ये जो तांकर इच्छाटा थिला तांका बायोलॉजिकल मदर सेटा भी फुलफिल हवा को जाउथला कहीं ना जते सब सेटलमेंट हो जाइथिला फर्स्ट तांको अडाप्ट करिया पई आगु को आसी जाइथिले कि जने लॉयर कपल ओके बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लॉयर थिले से माने इंटरेस्ट देखैले कि ए इलेजिटिमेट चाइल्ड को अडाप्ट करिवे ओके तांकर पोष्य संतान हिसाब रे पालन करिया पई से माने इच्छा जाहिर कले किंतु सेटा कोन हैला प्रॉब्लम फर्स्ट देखिबा except that when I popped out they decided at the last minute that they really wanted a girl so my parents who were on a waiting list got a call in the middle of the night asking we have an unexpected baby boy do you want him they said of course okay तो लॉयर फैमिली लॉयर कपल जो थिले से माने डिसाइड करथिले पिलाटा को पोष्य संतान रूप रे नबा पाई किंतु जेते बड़े से पॉप आउट हेले दैट मीन्स जेते बड़े से पिलाटा को देखिले लास्ट मोमेंट रे से माने तांकर डिसीजन चेंज कर देले कि हमकू गोटिए कन्या संतान दरकार ओके बेबी गर्ल दरकार बेबी गर्ल को हमें अडाप्ट करबे एटा बेबी बॉय अछि याको हमें अडाप्ट करिवु नाही तो लास्ट मोमेंट रे से माने अडाप्शन करिवा को डिक्लाइन करि देले सो माय पेरेंट्स हियर सो माय पेरेंट्स मीन्स वर्तमान से जो बापा माँ पाखे लालन पालन हो बड़ होती से पेरेंट्स बोली कहते ओके तांकर पोष्य दैट मीन्स फादर जो माने तांको फोस्टर फादर फोस्टर मदर तांको बर्तमान पेरेंट्स बोली कहले सो माय पेरेंट्स हु वेयर ऑन ए वेटिंग लिस्ट दैट मीन्स तांकर बर्तमान फादर मदर अछंती ओके फोस्टर फादर फोस्टर मदर अछंती से माने वेटिंग लिस्ट थे सेकेंडरी थे तांकर नंबर से माननको गोटे राति रे कॉल गला कि वी हैव ए अनएक्सपेक्टेड बेबी बॉय ओके आम पाखे गोटे इलेजिटिमेट अनएक्सपेक्टेड बेबी बॉय अच्छी वुड यू लाइक टू अडाप्ट हिम ओके तांको पाखु गोटे कॉल गला एंड से माने सांगे सांगे तांकर कंसर्न दे देले यस ऑफ कोर्स वी विल अडाप्ट दैट अनएक्सपेक्टेड बेबी बॉय ओके ऑफ कोर्स my biological mother later found out that my mother has never graduated from college and that my father had never graduated from high school तो ये जिते बेले तांकर फोस्टर फादर तांकु अडाप्ट करने को आसिले परे तांकर जो बायोलॉजिकल मदर जी तांकर जन्मदात्री माँ से जानिबा को पाइले कौन प्रॉब्लम हला तो लेटर दैट माय मदर जी अडाप्ट करिवे तांकर जो फोस्टर मदर हवा को जीवे शी हैज नेवर ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज तो ये कंडीशन थिला तांकर बायोलॉजिकल मदर कर कि जो दंपत्ति जो कपल ये पिलाटा को अडाप्ट करिवे दे मस्ट बी ग्रेजुएट बट ये प्रॉब्लम आसीगला कि तांका माँ जे अडाप्ट करिवे फोस्टर मदर हेबे से कॉलेज ग्रेजुएट नथिले एंड आउरी वर्स प्रॉब्लम थिला कि तांका फोस्टर फादर से स्कूल ग्रेजुएट नथिले तो ये ग्रेजुएट मीन्स सर्टिफिकेट होल्डर को ये कह जाए ग्रेजुएट मीन्स सर्टिफिकेट होल्डर को कह जाए कि तांकर पोष्य माँ से कौन कॉलेज ग्रेजुएट नथिले कि कॉलेज रु से सर्टिफिकेट प्राप्त करि नथिले कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करि नथिले एंड तांकर फोस्टर फादर जी हवा को जाउतले से स्कूल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर नथिले दैट मीन्स स्कूल रो सर्टिफिकेट से पाई नथिले मान स्कूल रो एजुकेशन टाको कंप्लीट करि नथिले एटा गोटे प्रॉब्लम थिला तो कंडीशन थिला कोन तांका मदरनकर डिजायर थिला बायोलॉजिकल मदरनकर कि ग्रेजुएट कपल को से देबे she refuses to sign the final adoption paper
She only relented a few months later when my parents promised that I would someday go to college. तो जिते बड़े से देखिले तांकर शिशु को जो माने अडाप्ट करिवे से माने प्रॉपर कॉलेज ग्रेजुएट नुहंती तो से रिफ्यूज करदेले से अडाप्शन लेटर टाकू साइन करबा पाई ओके बहुत कष्टरे ओके परे बहुत कष्टरे परे से राजी हेले केते बेले जेते बेले तांकर फोस्टर पेरेंट्स तांकर बायोलॉजिकल मदर को इनसिस्ट कले एश्योरेंस देले कि पिलाटा जेते बेले बड़ हबो आमे निश्चय से पिला को कॉलेज छाड़ीबू ओके एंड माय पेरेंट्स प्रॉमिस दैट आई वुड समडे गो टू कॉलेज दैट मीन्स ये पिलाटा को आमे निश्चय यार केयर नबू एंड केयर नहीं कि याको कॉलेज ग्रेजुएट आमे करिवु ए कंडीशन जेते बेले तांकर फोस्टर पेरेंट्स तांकर बायोलॉजिकल मदर का सामना रे रखिले तेबे जाई कि तांकर बायोलॉजिकल मदर कोन कले जो अडॉप्शन पेपर टाकू साइन कले ओके दैट मीन्स तो एठी जो से कहउछंती तो मोर जो कॉलेज रे पाद थापिबा और पाठपढ़ाटा कंप्लीट न करिबा एटा मोर आगुरु जन्म पूर्वरु डिसाइड हे सारिथिला ओके तो एटी से होची एंड नेक्स्ट पैसेज को जीवा देखिबा एंड 17 इयर्स लेटर आई डिड गो टू कॉलेज दैट मीन्स जते बडे बर्थ रो संगे संगे से अडॉप्शन को पळैथिले ओके तांको फोस्टर फादर को पाखु से मदर को पाखु से पळैथिले तार 17 वर्ष परे से कॉलेज रे ना लिखेले दैट मीन्स जते बडे कंडीशन करिथिले तांकर कोन फोस्टर पेरेंट्स कंडीशन करथिले बायोलॉजिकल मदर को कि आमे पिलाटा को निश्चय कॉलेज को छाड़ीबू 17 वर्ष पूर्ण जते बडे से पिलाटा को हैला ओके से तार स्कूल ग्रेजुएशन स्कूल सर्टिफिकेट कंप्लीट कला परे कॉलेज रे एंट्री कला I naively choose a college that was almost as expensive as Stanford and all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. तो कहले अनफॉर्चुनेटली आई नेवली दैट मीन्स नेवली मीन्स तरभरिया भाव में कही पारिबा आमे विदाउट मेकिंग एनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ओके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन न करिकी तरभरिया भाव में ओके विदाउट एनी एक्सपीरियंस रे से जाइकी गोटे कॉलेज रे ना देखे देले ओके रीड कॉलेज रे ना देखे देले जो कॉलेज की स्टीव जॉब्स तांकर भाषण देला बेले कहउछंती ए कॉलेज रे जो तमे माने पढुछो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी भलिया से कॉलेज ता से बेले नामी दामी थिला एंड बहुत एक्सपेंसिव थिला एक्सपेंसिव इन द मैटर कोर्स फी तार बहुत हाई फाई थिला तो परिणाम स्वरूप प्रॉब्लम कौन हैला स्टीव जॉब्स को जते बेले से कॉलेज रे एडमिशन कले तांकर प्रॉब्लम इया हैला जे तांको वर्किंग क्लास पेरेंट्स करो दैट मीन्स जो फोस्टर फादर एंड फोस्टर मदर थिले तांको अडॉप्ट जो माने करिथिले तांकर लाइफ लॉन्ग जो सेविंग थिला फर्स्ट 6 मंथ ऑफ कॉलेज लाइफ रे सब एंड हो जाइथिला दैट मीन्स से पिलार स्टीव जॉब्स रो कॉलेज ड्यूज कॉलेज फीस को कौन फुलफिल करिवारे तांकर 6 मंथ भितर ही तांकर लाइफ लॉन्ग सेविंग्स जो स्वल्प धन से माने संचित करी रखिथिले सेटा कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाइथिला आफ्टर 6 मंथ्स I could not see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. That means जिते बेले तांको पाखरे पैसा सरी गला ओके जिते बेले से कंप्लीटली इनेबल हो गले कि तांकर ट्यूशन फीस कोर्स फीस पेड करबा पाई तांको कॉलेज रे आफ्टर 6 मंथ से समय रे तांको किछि देखा गला नाही आई कुड नॉट सी द वैल्यू इन इट दैट मीन्स से चिंता कले कि मु ये जो कॉलेज ग्रेजुएशन करला परे करिबी कोन ओके एथरे किछि वैल्यू तांको देखा गला नाही आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वांटेड विथ माय लाइफ नो आइडिया हाउ कॉलेज वाज गोइंग टू हेल्प मी फिगर इट आउट तो जेतेले मु एबे छाड़ीबा को बसिलिनी पाठ पढ़ा छाड़ीबा को बसिलिनी मो जीवन को आडो को मते गति करैबो मु जीवनटा को पटो को मते नै कि जीव ओके मो जीवन रे कोन करिवि एंड जदि किछि भी करिवि एथरे मु जहाँ भी हेबी भविष्य रे मोर जो वर्तमान जो कॉलेज एजुकेशन अच्छी से केमिति मते हेल्प करिवो ए सब जिनिस को से फिगर आउट करि पारु नथले ए सब जिनिस को से कौन कौन तर्जमा करिकी कोनोसी गोटे निश्चय माने कौन फाइनल रिजल्ट रे से पहुंची पारु नथले दैट मीन्स से ऑब्वियसली कहबा चाहछन्ती जे हिज कॉलेज एजुकेशन वाज वर्थलेस दैट मीन्स से किछि वैल्यू से पाइले ना कहीं से कंप्लीट करबा पई कंप्लीटली इनेबल थिले तांको
फाइनेंशियली से कंप्लीटली रेक्ड हो जाते, फाइनेंशियली से कंप्लीटली कौन डाउन हो सारी से आउ रेस्ट जो 18 मंथ्स जो फीस थिला ताकू पेड करने पाखे एबिलिटी नथिला, पेरेंट्स पाखे एबिलिटी नथिला. I could not see the value in it. I had no idea what I wanted to do with my life and no idea how college was going to help me figure it out. And here I was spending all of the money my parents had saved their entire life. तो आ गोटे सब बड़ प्रॉब्लम से जो कहले जे जस्ट कि तांकर ई 6 मंथ कॉलेज रो एजुकेशन रे तांकर फोस्टर पेरेंट्स तांकर पालित पितामाता माने तांकर जीवन काल रे जेतिक स्वल्प परिमाणर धन संचय करी रखिथिले कंप्लीटली सरी जाइथिला. तो फर्दर तांको किछि बाट देखागला नाही कोन करिवे कोन न करिवे. ओके, my parents had saved their entire life, so I decided to drop out and trust that it will all work out okay. तो फाइनली आफ्टर 6 मंथ पर से स्ट्रॉन्ग डिसीजन गोटे नेले कि मु क्विट करदेवी. ओके, ड्रॉप आउट हो जी. दैट मीन्स कॉलेज रे आउ क्लास करी नाही, फर्दर मो एजुकेशन को मु परसिस्ट करि परिबी नाही, आगो को बढ़ई परिबी नाही, मु त्याग करिवा पई से कंप्लीटली माइंड मेकअप करदेले. एंड तांकु सेटा ओके भी लागिला, तांकु से ठीक ठाक लागिला, कहीं ना आगो को पैसा दे पारिबे नाही. जदि से कॉलेज एजुकेशन कंटिन्यू करंती तांको ऊपर डेप्ट बड़ी बड़ी चलिबो, तांकु कोन पुनी सुझीवा को पड़िबो, पैसा दबा को पड़िबो. सेति पई से बेटर पाठ पढ़ाटा को क्विट करिया पई कंप्लीटली माइंड मेकअप एंड डिसाइड करि सारिथिले. It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decision I ever made. तो कहले से समय रे कि कौन सी गोटे स्टूडेंट जिते बेले पाठटा को कंटिन्यू करी थाए से जिते हठात डिसाइड कर दिए कि मु पाठ को क्विट करदेवी, पाठ रू क्विट हो जीवी कि ताको अधारू इनकम्प्लीट करके मु छाड़देवी. से समय गोटे स्केरी डिसीजन थाए, गोटे भयंकर ओके डिसीजनटा थाए. किंतु स्टीव जॉब्स कहते वर्तमान आज मु जो पोजिशन रे ठिया होइछि तमानक गहण रे तमानक सम्मुखें मु ठिया होइकि तमानक कहूछि जो मु अनेक वर्ष तले जिते मो स्टूडेंट लाइफ रे 17 इयर्स रे मु जिते कॉलेज एजुकेशन को त्याग करी फर्स्ट 6 मास पढ़ी तो वर्तमान भावुँ मु से लाइफ रो मु बेस्ट डिसीजनटा नहीं थी. वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड. ओके, तो कहीं ना you know that I have told you that Steve Jobs, he is not only an ordinary person, rather he is one of the most inspirational person of the world, most powerful and great and successful businessman of America, not only America but also the world. Okay, and he has given one of the tremendous invention to the society, to the world. Okay, in the shape of in the manner of Apple, okay, company. And likewise जिते बड़े सक्सेस हो जाइछन्ती से स्टूडेंट मानक सामने ठिया कि भाषणटा अभिभाषणटा को रखिछन्ती से समय कहउछन्ती कि मु जेते वर्तमान एठी ठिया कि पछकु मु मो जीवन को जेते तर्जमा करूछि, पछकु मु जेते चाहि कि देखुछि कि मु 17 वर्ष बयस रे जेते पाठ पढ़ाटा छाड़ीथिली. एंड दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन. Okay, the minute I dropped out, I could stop taking the required classes that did not interest me and begin dropping in on the ones that I looked interesting. तो ये गोटे जिनस से कहले जो ड्रॉप आउट हो जाइथिले तो तांको से समय रे ड्रॉप आउट है से ड्रॉप इन होगी रोथले. दैट मीन्स कॉलेज रो एजुकेशन क्लासेस टाकू से ओमिट कर देथिले, क्लास जाउ नथिले किंतु हॉस्टल रे रहुथिले, कैंपस रे रहुथिले. तो इनिशियल टाइम रे से करूथिले कोन तांकू जो क्लास रे इंटरेस्ट हो नथिला, जो क्लासटा तांकू इंटरेस्टिंग लागु नथिला, बोरिंग क्लास रहुथिला, से क्लास रे से बसु नथिले, से क्लास टाकू से बंक करी दउथिले, से क्लास टाकू से ओमिट करी दउथिले. एंड जो क्लास तांकू इंटरेस्टिंग लागुथिला से क्लास रे से चुप किना जाई कि बसी जाउथिले. ओके, तो ये माने या द्वारा कोन हबो कि से सिलेक्टिव क्लास करूथिले, जो पर्टिकुलर गोटे क्लास तांको भल लागुथिला से क्लास रे जाई कि से प्रेजेंट होउथिले एंड अलगा कोन से क्लास रे से प्रेजेंट रहु नथिले. तो ओके, तो बिट चूजी हे जाइथिले. एंड से सिंगल क्लासटा कोन थिला सेटा हम नेक्स्ट पैराग्राफ रे पढ़िबा. ओके, तो से सिंगल क्लास तांको लाइफ रे कोन चेंजेस आनिला,
ओके से सिंगल क्लास रे कौन बेनिफिट से पाइले से सब नेक्स्ट से वर्णना करेंगे ये कहले द मिनिट आई ड्रॉप आउट आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस दैट आई डिड नॉट इंटरेस्ट मी जो तांकर रिक्वायर्ड क्लासेस थिला जेतिक क्लासेस थिला सिलेबस रे पर डे से क्लास जोटा तांको इंटरेस्ट लागु नथला सेटा को से ड्रॉप आउट कर देथिले एंड बीइंग ड्रॉप इन ऑन द वंस दैट लुक्ड इंटरेस्टिंग जो क्लासटा तांको इंटरेस्टिंग लागुला से ड्रॉप इन हो जाउथले दैट मीन्स से क्लास रे जाई कि से बेंच रे बसी जाउथले ओके फर्दर नेक्स्ट पैसेज टा को हमें नेक्स्ट वीडियो रे कंप्लीटली एलाबोरेट करिबा।